جو تلاوت آپ کے سامنے کی گئی یہ دانیل نبی کا ذکر ہے، نبوکت بادشاہ کا ذکر ہے۔ دنیا میں بہت ساری حکومتیں آئیں، فارسیوں کی حکومت آئی، بابلیوں کی حکومت آئی، رومیوں کی حکومت آئی، اسوریوں کی حکومت آئی، برٹش دور آیا، کئی مسلم حکومتیں آئیں۔ آج کے بھی دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی ملک ہے جو ساری دنیا میں مختلف طور پر حکومت کرتا ہے۔ کسی نہ کسی دور میں ایک ایسی حکومت رہی ہے کہ جو ساری دنیا پر کنٹرول کرتی تھی۔ جب بابل حکومت کی بات کرتے ہیں اور اس میں پھر نبوکت نظر بادشاہ آتا ہے، نبوکت نظر بادشاہ نے اپنی حکومت کو بہت سٹرونگ کیا، بابل کو اس نے بہت مضبوط بنایا۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو مختلف دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے، ہر طرح کا دیوتا ان کے شہر میں ہوتا جس کے آگے جھکتے۔ اور دانیل 3 باب پڑھیں تو وہاں پر ذکر ہے کہ نبوکت نظر نے حکم کیا کہ ایک مورت بنائی جائے جو 60 ہاتھ لمبی ہو اور 6 ہاتھ چوڑی ہو، اور جب ساز بجائے جائیں تو ہر کوئی اس کے سامنے جھکے اور اسے سجدہ کرے، اور جو کوئی اس کی ورشپ نہ کرے اسے آگ کی بھٹی میں ڈالا جائے گا۔ یہ ایک قانون بن گیا، یہ ایک لا بن گیا۔ وہ مورت بنوائی گئی، ساز بجائے گئے مختلف طرح کے، ہر ایک نے سجدہ کیا، لیکن بادشاہ تک یہ خبر پہنچی کہ صدرک مسک عبد نجو نے تجھے سجدہ نہیں کیا ہے۔ نبوکت نظر نے ان کو بلایا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا بھائی؟ انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ بادشاہ سلام ہم اسے ضروری نہیں سمجھتے کہ تیری مورتیوں کے آگے ہم تجھے سجدہ کریں۔ ہم نے یہی سیکھا ہے کہ ہم نے صرف خدا ہی کو سجدہ کرنا ہے، ہم نے صرف اسی کی عبادت کرنی ہے، اور ہم نے صرف اسی کی شکرگزاری کرنی ہے۔ اس لیے ہم ایسا نہیں کر سکتے ہیں، جو تو سزا ہمیں دینا چاہتا ہے وہ سزا ہمیں دے۔ چونکہ نبوکت نظر نے قانون بنایا تھا، وہ غصے میں آ گیا اور اس نے کہا کہ جو آگ ہے اس کو 7 گنا زیادہ تیز کر دیا جائے، روٹین سے ہٹ کر، اور ان کو کپڑوں سمیت اس میں ڈالا جائے، جاموں سمیت ان کو آگ کی بھٹی میں ڈالا جائے۔ پہلوان حاصل کیے گئے جنہوں نے ان بندوں کو اٹھا کر اس میں ڈالا، اور جو ڈالنے والے تھے وہ اس آگ سے جل کر مر گئے، لیکن یہ 3 لوگ اس آگ کی بھٹی میں جب ڈالے گئے ہیں، اب نبوکت نظر دیکھ رہا ہے کہ ان کی زندگی میں کیا ہوتا ہے، اور پھر اس نے دیکھا کہ یہ لوگ جو ڈالے گئے ہیں کپڑوں سمیت، ان کو تو کچھ نہیں ہوا، یہ تو اس بھٹی میں چل پھر رہے ہیں، نہ ان کی آوازیں آ رہی ہے، نہ ان کی چیخیں آ رہی ہے، نہ ان کی شاؤٹنگ ہو رہی ہے، یہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ یہ آگ کو 7 گنا زیادہ تیز کر دیا گیا ہے، لیکن یہ تو ویسے کہ ویسے ہیں۔ پھر اس نے غور کیا کہ یہ 3 لوگ نہیں ہیں، یہ تو 4 لوگ ہیں۔ اس نے سمجھا شاید مجھے غلطی لگ رہی ہے، میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، میں کوئی رویا دیکھ رہا ہوں۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو بلایا،
मशीरों को बुलाया, यार हमने कितने लोग डाले थे? उन्होंने कहा बादशाह सलाम हमने 3 डाले थे, और ये मैं 4 देख रहा हूं। हाँ बादशाह सलाम ये तो 4 बंदे हैं। चौथा जो है ये तो है डिफरेंट लग रहा है, उसकी शक्ल तो और ज्यादा किसी है। इंग्लिश में उसका लिखा है लुक लाइक ए सन ऑफ गॉड, कि ये तो खुदा का बेटा लग रहा है। लुक लाइक सन ऑफ गॉड भी कहा गया है, और नबूकदनेस्सर ने एंजल भी कहा, फरिश्ता भी कहा। भट्टी में 3 डाले हैं, लेकिन उसे 4 नजर आए हैं। नबूकदनेस्सर की जिंदगी में ये एक सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस था। ये वो एक्सपीरियंस था जिसको कभी उसने अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। बस का खुदा हमारी जिंदगी में सुपरनेचुरल तजर्बात करता है। खुदा हमें आग की भट्टियों से निकालता है, खुदा हमें दुखों की भट्टी से निकालता है, खुदा हमें गुर्बत की भट्टी से निकालता है। लेकिन बरकत के साथ साथ हम चीजों को भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहता है। हम दुनिया में इस कदर बिजी होते हैं, हमारे इर्द गिर्द बरकत की बारिश हो रही होती है। खुदा हम पर अपनी आसमानी बरकत को, रूहानी बरकत को नाज़िल कर रहा होता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता है कि हमारी जिंदगी में यह बरकत आ रही है। बनी इसराइल बियाबान में 40 साल तक चलते रहे, 40 साल तक आसमानी मन खाते रहे, 40 सालों तक उनके जो कपड़े थे ये ब्रांडेड बन चुके थे, ना वो फटे ना वो पुराने हुए। उन 40 सालों में उनकी जूतियां नहीं टूटी, बच्चे बढ़ रहे थे, जूते बढ़ रहे थे। कोई उनके साथ मार्केट नहीं थी जहां पर वो जाते और शॉपिंग करते और कपड़े बदल लेते। खुदा उनकी जिंदगी में रोज मौजज़ात करता। खुदा ने कई मौजज़ात बनी इसराइल में किए, लेकिन उसके बावजूद बनी इसराइल ने खुदा की मेहरबानी को याद ना रखा। बहुत सारे बियाबान में मार गए। जो मिस्र से निकले थे उनमें से कोई भी प्रॉमिस लैंड में ना जा सका, और उनकी बुनियादी वजह यह थी कि उनका रवैया, उनका स्टाइल शुक्रगुजारी का रवैया नहीं था। मौजज़ात होने के बावजूद, बरकत होने के बावजूद, दुआओं का जवाब मिलने के बावजूद, सारी जरूरियात के बावजूद उनका रवैया शुक्रगुजारी का नहीं था। और यही वजह थी कि वो सारे रास्ते में मार गए। और इसलिए दाऊद जब ज़बूर लिखता है तो कहता है 70 वर बीते 80 वर बीते आखिर फिर भी पना, क्योंकि वो सारे रास्ते में मर गए थे और उनकी मरने की वजह ना शुक्रापन था। मेरे इस बात को याद रखें, कोई ईमानदार ऐसा नहीं है, कोई घराना, कोई चर्च ऐसा नहीं है जहां पर खुदा काम नहीं करता है। खुदा काम करता है जिंदगियों में, खुदा काम करता है ईमानदारों के बीच में, लेकिन उसके बावजूद हम अपने कामों में इस कदर बिजी कि हमें याद नहीं रहता है कि खुदा ने कौन कौन सी बरकत हमें दी है। खुदा बुनियादी तौर पर यह चाहता है कि हम छोटी छोटी बात के लिए खुदा का शुक्र अदा करें। यह सालाना शुक्रगुजारी से एक साल के बाद आती है, लेकिन खुदा बुनियादी तौर पर चाहता है कि हम हर रोज खुदा की मेहरबानी को याद करें और उसका शुक्र अदा करें। खुदा चाहता है कि हमारी जिंदगी का लाइफ स्टाइल जो है ये शुक्रगुजारी का बनता चला जाए। एक बड़ा मौसा जो है ये एक बुत परस्त बादशाह है जो खुदा को भी नहीं जानता है, लेकिन खुदा ने अपना आप उस पर जहर किया। खुदा ने उसे वो कुछ दिखाया जो उसने कभी पहले नहीं देखा था। खुदा ने उसे बहुत कुछ दिखाया, लेकिन उसके बावजूद
नबूकदनेस्सर ठीक राह पर न आया। और फिर खुदा ने इसे एक और रोया दी और एक विजन दी, और खुदा ने उसे दोबारा, जब ये अपने बेड पर है तो ये देखता है कि एक दरख्त है। वो दरख्त कद में बहुत बढ़ गया है, उसकी शाखें फैल गई हैं, उस पर जबरदस्त फल लगा है, उस दरख्त से कौमें शराब हो रही हैं, उस दरख्त से लोगों को बरकत मिल रही है, लोगों को रोजगार मिल रहे हैं। बेहद खूबसूरत और लंबा और प्यारा दरख्त है। और फिर लिखा है कि एक कुदसी आता है और आकर कहता है कि दरख्त को काट डालो, इसे खत्म कर दो, बस इसकी जड़ रहने दो। और फिर वो देखता है कि ये पूरी ख्वाब वो देख रहा है कि वो शख्सियत जो है उसे जंगलात में हाँक दिया गया है, नेचर चेंज हो गई है, खसरत चेंज हो गई है। और फिर ये जो दौर है ये 7 सालों का दौर कहा गया है। नबूकदनेस्सर ने बुलाया नजूमियों को, तबीर करने वालों को, और उसने कहा कि तबीर करें, लेकिन कोई तबीर ना कर सका। और फिर दानियल को बुलाया गया और दानियल ने उसको ट्रांसलेट किया, उसकी ख्वाब की तबीर की। बड़े डरते हुए उसने कहा, बादशाह सलामत, ये जो दरख्त है ना, ये तू है, दरअसल ये तेरी हुकूमत है, तू बहुत बढ़ गया है, तेरे लोगों से लोगों को बरकत मिली है, लेकिन दरख्त काटा गया है और तू जंगलों में हाँक दिया गया है, तू इंसान नहीं रहा, तू जानवर बन गया है। यह वक्त तुझ पर आएगा, इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूं कि बादशाह सलामत, वो तजर्बात जो तेरी जिंदगी में हुए हैं उनको याद कर, वो मेहरबानियां जो तेरी जिंदगी में हैं उनको याद कर, ताकि तेरी जिंदगी पर यह बुरा वक्त ना आए। पूरे 1 साल बाद इसके बारे में लिखा है, पूरे 1 साल के बाद दानियल इस बात को बयान करता है, उसके 4 बाब 30 आयत में बादशाह ने फरमाया, क्या यह बाबल अजीम नहीं जिसको मैंने अपनी तवानाई की कुदरत से तामीर किया है, कि यह दारुल सल्तनत और मेरे जलाल का नमूना हो। यह बात नबूकदनेस्सर के मुंह से निकलनी थी, यह बात खुदा की हजूरी में कबूल ना हुई। यह वो बात थी कि जिसमें वो ऑनर खुद ले रहा था, जिसमें जलाल खुद ले रहा था, जिसकी वजह से उसके लिए लिखा है कि उसके लिए फतवा जारी कर दिया गया कि बादशाह सलामत, तेरी हुकूमत जो है ये खत्म होती है और तू जानवरों के बीच में हाँक दिया जाता है। मेरे अजीज बात को याद रखें, इब्लीस हमारी जिंदगी में जो एक कड़वा बीज बोता है, जो इंसानों से शुरू हुआ, आसमानों से शुरू हुआ, लूसीफर से शुरू हुआ, और लूसीफर से शुरू होकर बागे अदन में आया, और बागे अदन से नस्ल इंसानी में आया, और वो इंसान की खुदी है। ये इंसान को खुदा का शुक्र अदा करने नहीं देती है, ये इंसान को खुदा का शुक्र अदा करने नहीं देती है। ये बादशाह ने भी कहा कि ये मैंने बनाया है, ये मुल्क, ये सल्तनत मैंने बनाई है, और ये वो कॉमन सिन है जो मुझ समेत आम नस्ल इंसानी में पाया जाता है।
یہ فرسٹ سن ہے، یہ پہلا گناہ ہے جو انسانی زندگی میں بے شک وہ کسی بھی قوم اور مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، اور یہی وہ گناہ ہے جس سے خاندان ٹوٹتے ہیں، جس سے کلیسیا ٹوٹتی ہے، جس سے ازواجی بندھن ٹوٹتے ہیں۔ یہ گناہ، اس میں نقصان یہ ہے کہ اس میں آنر خدا کو نہیں دیا جاتا ہے، اور یہ ہم سے ہو جاتا ہے، نہ کرنے کے باوجود بھی یہ ہم سے ہو جاتا ہے، نہ کرنے کے باوجود بھی میں یہ سمجھتا ہوں I am good, I am okay, I am good، میں ٹھیک ہوں، I am okay۔ یہ اسپرٹ موو کرتی ہے۔ اس اسپرٹ کے لیے نبوکدنضر کو کہا گیا تھا کہ تو نے خیال کرنا ہے کہ تو کوئی ایسا کام نہ کرے۔ خدا نے اسے دکھایا، خدا نے نبی کو بھیجا، حالانکہ وہ غیر قوم ہے، اسے وارننگ دی گئی ہے، لیکن وہ جو کریڈٹ ہے وہ اس نے لے ہی لیا، اور پورے 1 سال کے بعد اس بات کو اس نے یاد نہ رکھا، اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ اس کی بادشاہ جو ہے، لکھا ہے کہ 7 سال نبوکدنضر حیوانوں میں ہانک دیا گیا۔ اس نے خدا کی مہربانی کو یاد نہیں رکھا، خدا نے اسے سلطنت دی۔ خدا ہمیں بہت کچھ دیتا ہے، لیکن جب یاد نہیں کرتے ہیں تو مینی ٹائم ہمارا بھی حال نبوکدنضر جیسا ہو جاتا ہے۔ خدا کے فضل کو، اس کے رحم کو یاد کرنا بے حد ضروری ہے۔ یہ سالانہ شکرگزاری کی بات نہیں ہے، یہ ہر روز کی بات ہے۔ ہمارا لائف ایٹیٹیوڈ ہمیشہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہم خدا کو آنر کریں، خدا کو آنر کریں، خدا نے میری زندگی میں یہ کر دیا، خدا نے میری زندگی میں یہ کر دیا، یسوع نے میری زندگی میں یہ کر دیا، روح القدس نے میری زندگی میں یہ کر دیا۔ وہ ایک لائن نبوکدنضر کو لے کر بیٹھ گئے، only one simple لائن ہے، اسے تنبیہ کی گئی ہے، اس کو دکھایا گیا ہے۔ اس نے خدا کے بیٹے کو دیکھا ہے، اس نے فرشتوں کو دیکھا ہے، اس نے سپرنیچرل ایکسپیرینس دیکھا ہے، لیکن پھر بھی کریڈٹ وہ خود لے گیا۔ اس کریڈٹ کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کی ڈیوائس ہی خدا نے بدل دی، اس کی اندر کی اسپرٹ ہی خدا نے بدل دی۔ یہ انسان نہ رہا، یہ جانور بن گیا۔ لوگ اسے تخت پر بٹھاتے ہوں گے، یہ باغ باغ کر جنگلوں میں جاتا، اس کے اور چیز کے لیے کھانے بنا کر لاتے ہوں گے۔ وہ کہتے ہوں گے بادشاہ سلامت، آپ کے لیے شنواری لے کر آئے ہیں۔ بادشاہ سلامت کہتے ہوں گے نہیں، میرے لیے چائنا دا کال ہے کیا، کیونکہ اس کا نیچر ہی بدل گیا۔ وہ کہتے ہیں بادشاہ سلامت آج روسٹ بنایا ہے KFC سے۔ نبوکدنضر کہتا ہو نہیں، میرے لیے پرالی لے کے آؤ، میرے لیے توڑی لے کے آؤ۔ اس کا چینج ہی کر دیا، نہ شکراپن، اس کا چینج ہو گیا۔ اس کو شاید رسیوں سے باندھتے ہوں گے، اس کے ناخن بڑھ گئے ہیں، اس کے بال بڑھ گئے ہیں، اس کا حلیہ بالکل تبدیل ہو گیا ہے۔ بڑا کیا ہے؟ اس نے خدا کو آنر نہیں کیا ہے۔ خدا کو آنر کرنا بڑا ضروری ہے، اور جب ہم خدا کو آنر نہیں کرتے، ہماری بھی خصلت حیوانوں جیسی ہوتی ہے، ہماری بھی سوچ حیوانوں جیسی ہوتی ہے۔ اور نبوکدنضر کی زندگی میں یہ سب کچھ ہوا۔ خدا نے اسے کہاں سے، ایک بت پرست ہے، مورتوں کا پوجنے والا ہے، کہاں خدا اسے اپنا بیٹا دکھا رہا ہے؟ کہاں خدا وہ دیکھ رہا ہے کہ ایک اعلیٰ زادہ سا ہے، سن آف گاڈ ہے؟ کہاں پر خدا نے اسے اسپرچل تجربے دے دیے ہیں؟ کہاں سے خدا نے اٹھایا ہے؟ کہاں پر ہم مر رہے تھے، بھوکے مر رہے تھے، پیدل چاہ رہے تھے، کرایہ دے رہے تھے، خدا نے گھر دے دیا، خدا نے گاڑی دے دی۔ کہاں سے خدا نے سائیکل سے اٹھا کر ہمیں گاڑیوں پر بٹھا دیا؟ تو ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہر روز ہم اس کی شکرگزاری کرنی چاہیے۔ نبوکدنضر حال اس کا برا ہو گیا ہے،
उसके बीवी, उसका बेटा बेलशस्सर, उसके वजीर देखते होंगे कि हमारा बादशाह का क्या हाल हुआ है। लेकिन बादशाह की यह प्रॉब्लम थी, उसे कहा गया था तूने केयरफुल रहना है। डियर चर्च, जब तक हम केयरफुल नहीं ना होंगे अपनी बातों में, अपने कलाम में, हमारा भी हाल नबूकदनेस्सर जैसा होता है। हम महसूस नहीं करते। नबूकदनेस्सर की जिंदगी में वो सारी चीजें जो उसने सोची भी नहीं थी, वो उसकी जिंदगी में आ गई। कहां पर वो शाही खुराक खाने वाला और कहां पर वो अब जंगलों के बीच में रहता है। ये अपने महल में नहीं रहता होगा, इसके लोग इसे बुलाते होंगे। ये दौड़ दौड़ कर जंगलों में जाता होगा, ये उन जानवरों के साथ रहता, ये उनके साथ खाता, उनके साथ पीता, उनके साथ चलता और उन जैसा जानवर बन गया था न शुक्रपन की वजह से, क्योंकि वो तजर्बा उसने याद नहीं रखा था। 7 साल इसकी जिंदगी में आए, खुदा ने नबूकदनेस्सर को दिखाया और दानियेल ने उसकी ताबीर की और दानियेल ने उसे कहा कि ये 7 साल का टाइम होगा। वेरी केयरफुल, वेरी केयरफुल। कई बार हम शायद घास ही खाते रहते हैं और खुदा का शुक्र अदा नहीं करते। कभी याद किया ये जिंदगी बड़ी नेमत है खुदा की तरफ से। बहुत सारे लोग सैलाब में मर गए, आज बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अभी भी छत नहीं है। आज भी सिंध का बहुत सारा हिस्सा है जहां पर पानी ठहरा हुआ है। आज भी शायद उनको छापरों की सूरत में रोटी उन पर फेंकी जाती है, वो खाते हैं। आज भी शायद जानवरों की तरह वो चीजें फेंकी जाती है और खाते हैं। कभी आपने सोचा कि आपको घर बैठे सारी चीजें मिल रही हैं? खुदा ने आपकी जरूरतों को पूरा कर रहा है, खुदा आपके बच्चों को पढ़ा रहा है। आपके 2 बच्चे खुदा के फजल से यूएस चले गए हैं, आने वाले वक्त में और भी बच्चे जाएंगे। दिस इज अ बिगिनिंग। खुदा ने आपकी जरूरतें रूहानी तौर पर पूरी की हैं, खुदा ने आपकी जिस्मानी तौर पर जरूरतें पूरी की हैं, खुदा ने आपकी दुआओं का जवाब दिया है। इसलिए हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। जरूरी नहीं कि हम भी नबूकदनेस्सर की तरह उसी दुख से गुजरे। नबूकदनेस्सर की जिंदगी में ये 7 साल रहे और फिर 7 सालों के बाद लिखा है, वो कहते हैं और फिर मेरी अक्ल मुझ में वापस आई। फिर से खुदा ने उसकी डिवाइस चेंज कर दी। पहले बादशाह है, फिर जानवर, उसका अंदर कंप्यूटर ही खुदा ने उसका तब्दील कर दिया। वो जानवरों जैसी खसरत उसकी हो गई। और 7 साल के बाद फिर से खुदा ने उसका कंप्यूटर, उसकी डिवाइस चेंज की और फिर से वो इंसान बना। और जब इंसान बना तो फिर इंसान बन गया, फिर इंसान बन गया। फिर वो कहते हैं कि फिर वो खुदा का शुक्र अदा करता है, फिर खुदा का शुक्र अदा करता है कि तू ही बादशाह है और तेरी ही सल्तनत अब्दुल्लाबाद है और तू ही सब कुछ है। और खुदा ने उसे साबित किया कि मैं ही इंसानों की ममलकत में हुक्मरानी करता हूं, मैं हुक्मरानी करता हूं। आज जो कुछ है वो खुदा की तरफ से है। आप कारोबार में जो कुछ है वो खुदा की तरफ से है। आप चर्च में जो कुछ है, खिदमत में जो कुछ है वो खुदा की तरफ से है। इसलिए हमेशा अपने आसमानी बाप का शुक्रिया अदा करना चाहिए। इसको दुखों से निकल कर समझ आई कि अब मैंने खुदा का शुक्र अदा करना है। अब वो कहता है खुदा हम तेरा शुक्र हो, तू ही अलमाइटी गॉड है और तू ही लिविंग गॉड है। हालांकि उससे पहले उसने बेटे को देखा है, उसने उसकी कुदरत को देखा है। आपको खुदा ने अपने बेटे के वसीला से निकाला है, बड़ी शुक्रगुजारी बनती है। इसने भी बेटा देखा है, यह खुद कहता है एक की शक्ल आला ज्यादा की है, लुक लाइक ए सन ऑफ गॉड। इसने यीशु को देखा है, इसने प्रीचर को देखा है, नहीं बट ही नेवर चेंज, वो तब्दील नहीं हुआ है। लेकिन जब 7 साल घास खाया है, जानवरों में रहा है, जंगलात में रहा है, फिर उसकी चेंज हुई है अकल और फिर उसका स्टेटस चेंज हो गया। अब वो मूर्तों के आगे नहीं झुकता है,
अब वो किसी मूर्ति को सिजदा नहीं करता है, अब वो किसी बुत को सिजदा नहीं करता है, बल्कि अब कहता है कि खुदा ही है, उसकी तारीफ करनी है, उसकी शुक्रगुजारी करनी है, क्योंकि वही पुष्ट दर पुष्ट कादर मुतलक है, वही अब्दी है, वही जलाली है, वही बड़ा है, वही कादर मुतलक है, वही सब कुछ है। हमेशा छोटे छोटे तजर्बात को अपनी जिंदगी में याद रखा करें, छोटी छोटी मेहरबानियों को याद रखा करें, छोटी सी खुदा ने बरकत दी है उसका शुक्र अदा करें। किसी बड़ी बरकत को लेने के लिए छोटी बरकत के लिए खुदा का शुक्र अदा करें। छोटी छोटी शुक्रगुजारियां, आपके मुंह से निकले हुए लफ्ज आपको बहुत आगे लेकर जाएंगे। ये छोटी छोटी अगर खुदा ने आपके मुंह में सिर्फ नबूती एक ही लफ्ज डाला हो के शुक्र करें। आपकी दुआ से कि बीमार ठीक हो गया, खुदा का शुक्र करें। रूह खुदा की नेमतें आपकी जिंदगी में आ जाएगी। खुदा ने आपको छोटा सा कुछ दिया है, उसके लिए खुदा के शाकर बन जाए, उसके लिए खुदा को सीता करे, खुदा की मेहरबानी को याद करे। आपकी शुक्रगुजारी, आप पर खुदा की हजूरी, आप पर रूह खुदा का मुकाशफा, आप पर खुदा का मुकाशफा, आप पर बेटे का मुकाशफा खुलता चला जाएगा। आप भी फरिश्तों को देखेंगे, आप उन रूहानी तजर्बात को, आप सुपरनेचुरल तजर्बात को अपनी जिंदगी में देखेंगे जब आप खुदा के शुक्रगुजार बन जाएंगे। दुख है, बीमारी है, खुदा ने निकाल लिया है, हमेशा शुक्र करें, हमेशा शुक्र करें। यह नहीं कि अक्टूबर में आकर एक लिफाफा बनाकर, यह ठीक है, यह भी ठीक है, लेकिन यह काफी नहीं है, यह काफी नहीं है, यह काफी नहीं है। हर रोज कहां से खुदा ने उसे दिखाया, कहां एक बुत परस्त है, बुतों को पूजने वाला है। उस वक्त तो यीशु वजूद में नहीं आए थे, उस वक्त तो यीशु दुनिया में इंसान बनकर, मेरा मतलब है नहीं आए थे तो वो, लेकिन मैं इंसानी जामा पहनकर, लेकिन खुदा ने उस वक्त नबूकदनेस्सर को दिखा दिया। कितना बड़ा तजर्बा था उसकी जिंदगी में, उसकी लाइफ चेंज होने के लिए। खुदा ने कहां से, किस बीमारी से निकाला है, कितने बड़े हादसे से निकाला है, कितनी बड़ी बरकत से निकाला है। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र अदा करना सीखें। वो कहता है वही पुष्ट दर पुष्ट है, एक ही खुदा है। अपनी नस्लों के लिए बोला करे, खुदा हम और हमारी नस्लें तेरी इबादत करें, हम हमारे बच्चे, आने वाले बच्चे तेरी शुक्रगुजारी करें। ये प्रोफेटिक सीड बोला करे अपने बच्चों के लिए। पौलुस और सलास पकड़े गए खिदमत करते हुए, बेड़ियां पहनाई गई। सच किस्म की बेड़ियां उस वक्त होती थी, वो उन्हें पहनाई गई हैं। मारा है, कूटा है, ज्यादती हुई है, लेकिन उनकी जिंदगी में कि हमें शिकवा नजर नहीं आता है। फलां ने मुझे नहीं पूछा, पतरस लोग हमारा पता करने नहीं आए, पादरी साहब हमारा पता करने नहीं आए हैं, हम तो उसका काम कर रहे थे। खुदा ने हमारे साथ ऐसा क्यों होने दिया, यीशु ने हमारा साथ ऐसा क्यों होने दिया। उस जेल में उनके मुंह में कोई ना शुक्रापन नहीं है, कोई शिकवा नहीं करे। मेरे सोहरे वालों कोई नहीं आया, मेरे पेके वालों कोई नहीं आया, मेरे भैन भरावां चों किसी ने आके मैनूं पूछा तुसीं किहड़े हाल च हो, तैनूं रोटी लभदी पई है कि नहीं लभदी पई। नो कंप्लेन। जेल में गए हैं, एक ने कहा होगा, पुलिस ने कहा ये सलास आजा भी खुदा का शुक्र अदा करे, आजा खुदा का शुक्र अदा करे। उन्हें शुक्रगुजारी के गीत गाने शुरू कर दिए, उन्हें शुक्रगुजारी की गाने, ज़बूर गाने शुरू कर दिए। वो खुदा की तारीफ करना शुरू हो गए। तारीफ करते करते उनकी बेड़ियां खुलना शुरू हो गई। शुक्रगुजारी करते हुए उनकी बेड़ियां खुल गई। जब हम शुक्रगुजारी करते हैं, हम गुनाह से, हम लानतों से, हम बीमारियों से, हम दुखों से आजाद होते हैं। शुक्रगुजारी हमें आजाद कर देती है, शुक्रगुजारी हमें सेट फ्री कर देती है, शुक्रगुजारी हमें फ्रीडम देती है।
आज इंसान सोचा में फंसा हुआ होता है। शुक्रगुजारी उन्होंने ज़ाद कर दिया, और सिर्फ ज़ाद ही नहीं किया बल्कि जिस तरह से नबूकदनेस्सर का स्टेटस तब्दील हो गया, मूर्तों से हटकर जिंदा खुदा की इबादत करने लगा। वो दरोगे जिन्होंने बांधा था, वो दरोगे जिन्होंने मारा था, वो दरोगे जो उन पर ड्यूटी दे रहे थे, वही कह रहे हैं ऐसा वो हम क्या करें कि हम भी निजात पाए और तुम जैसे बन जाए। उनका स्टेटस ही चेंज हो गया। शुक्रगुजारी करते करते इंसान का स्पिरिचुअल स्टेटस चेंज हो जाता है, खुदा आपको आगे ले जाता है। हमने हर वो बात करनी है जिसपे ऑनर खुदा को मिले। हमने हर एक बात में खुदा का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और तीसरी बात, हमने अपने रुपए पैसे से खुदा का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में लिखा है, पर जो बोने वाले के लिए बीज और खाने के लिए रोटी वहां पहुंचाता है, वही तुम्हारे लिए बीज वहां पहुंचाएगा और उसमें तरक्की देगा और तुम्हारी राष्ट्रबाजी के फलों को बढ़ाएगा। आज की सालाना शुक्रगुजारी, मेरे अजीज इस बात को याद रखें, जो बीज आप लेकर आए हैं, जो बीज आप खुदा की हजूरी में बोएंगे, यह बहुत जरूरी है। यह खुदा के कलाम के मुताबिक है। बीज बोना और फसल काटना, सुबह को बीज बोना, दोपहर को बीज बोना, रात को बीज बोना, अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। आपका बीज, थैंक्सगिविंग सीड, शुक्रगुजारी का बीज, इस बात को याद रखें, यह गुर्बत के खिलाफ इंश्योरेंस है। आपका बीज गुर्बत को किल करता है। आपका शुक्रगुजारी का बीज गुर्बत का खात्मा करता है। पहले आपने गीतों से वर्शिप की है, आपने दुआ से वर्शिप की है, आपने सिजदे में जाकर वर्शिप की है, और सीधा क्या, और दिस इज द टाइम कि जब आप अपने रुपए पैसे से खुदा की तमजीद और उसकी शुक्रगुजारी करेंगे। आपका बीज आपकी बीमारियों के खिलाफ लड़ता है। आपका बीज आपकी लानतों के खिलाफ लड़ता है। आपका बीज अब्रीज के खिलाफ लड़ता है, और आपका बीज आपकी दरखास्तों को खुदा की हजूरी में पुश करता है। आपका बीज आपकी रिक्वेस्ट को, जो आप दरखास्त करे हैं, उसे खुदा की हजूरी में धकेलता है, पुश करता है, आसमानों तक पहुंचाता है। और आपका बीज, इस बीज की आवाज है, इस बीज की आवाज है, यह आसमानों पर बोलता है। इस बीज की आवाज है, यह डेड बीज नहीं है। आपका बीज जो शुक्रगुजारी का बीज है, जो थैंक्सगिविंग सीड है, ये दिस इज नॉट योर सोशल डिसीजन, दिस इज योर स्पिरिचुअल डिसीजन। यह आपका रूहानी फैसला है कि मैंने खुदा के हजूरी में बीज बोना है। इसलिए जब आप बीज बोते हैं तो इस बात को याद रखें, ये खुदा की हजूरी में पहुंचता, खुदा की हजूरी में हाबिल की कुर्बानी की तरह बोलता है। और ये आपका बीज इस काबिल है कि आसमानों पर से जोर जोर से बोले। आपका बीज आसमानों पर बोलता है, और ये पंजाबी च मट्ठा नहीं बोलता, ये शॉर्ट नहीं बोलता है। खुदा की हजूरी में बीज जो बोया जाता है, ये सिर्फ यहां नहीं है, ये आसमानों पर भी बोलता है। आपका बीज, इस बात को याद रखें, खुदा को क्विक एक्शन करने के लिए मुतहरक कर देता है। आपका बीज जो बोते हैं, इस बात को याद रखें, आपका बीज, योर थैंक्सगिविंग सीड्स इज लाइक योर बैकबोन। आपका बीज आपकी रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी टूट जाए, बंदा लम्या पे आ जाता जाए, वो कुछ नहीं कर सकता, ही इज पैरालाइज। आपका बीज आपको एक्टिव कर देता है। आपका बीज आपको सीधा कर देता है खुदा की हजूरी में। आपका बीज आपको रूहानी तौर पर कुबड़ा नहीं रहने देता है।
आपका बीज, इस बात को याद रखें, आपको जिंदगी देता है। योर सीड गिव योर लॉन्ग लाइफ। आपका बीज आपके रूहानी पर्पस को पूरा करता है। आपका बीज आपके डिजायर को पूरा करता है। आपका बीज आपको मौत से बचाता है। आपका बीज दुखों से बचाता है। आपका बीज आपके लिए मौसात लेकर आता है। आखिर में जो कुछ आपके हाथ में है मेरे अजीजों, वो खुदा को दें। जो कुछ आपके हाथ में है वो खुदा को दें, और जो कुछ खुदा के हाथ में है वो आपको देगा।